Now let us take the case of death of the partner. As we have discussed at the time of retirement and at the time of admission, that when a partner dies, we will have to reconstitute the partnership एंड पार्टनरशिप डीड भी नहीं बनती है और सारी रीवैल्यूएशन जैसा हमने रिटायरमेंट में पढ़ा और जैसा हमने एडमिशन में पढ़ा वैसा हमें करना होगा. तो जिस तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस की एडजस्टमेंट हमने रिटायरमेंट के टाइम पे की, ऑल द एडजस्टमेंट्स विल बी हैव टू बी डन व्हेन द पार्टनर डाइज. And the accounting treatment in the event of the death of the partner is similar to that in the case of retirement of a partner. Secondly, in the case of the death of the partner, his claim is transferred to his executors and settled in the same manner as that of the retired partner. However, there is one major difference that while at the time of the retirement normally takes at the end of the accounting period, death can occur any time in the year. Hence, in case of death, his claim or the deceased partner claim shall also include his share of profits and losses, his interest on capital, interest on drawings if any, from the date of the last balance sheet to the date of the death. The main problem relates to the calculation of the profit for the intervening पीरियड. सो जितने मंथ के लिए वो पार्टनर एग्जिस्ट करता है एज अ पार्टनर इन द बिजनेस, उतने मंथ के लिए हमें उसका प्रॉफिट का शेयर, उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द रिटायरमेंट एंड द डेथ. Since sometimes it is considered cumbersome to close the books and prepare the final accounts for the period, so the deceased partner share of the profit may be calculated on the last year profit basis और ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स. अब हमें ये तो पता नहीं कि 2 महीने में फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, या उसकी कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है. इसलिए हम क्या करते हैं कि पिछले कुछ सालों की एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं एंड वो एवरेज प्रॉफिट को उतने नंबर ऑफ डेज के साथ या मंथ्स के साथ जितनी देर वो पार्टनर हमारे साथ कंटिन्यू करता है, हम उसकी शेयर उसको दे देते हैं. लेट अस टेक वन एग्जांपल. You are given the balance sheet of A, B and C, who are the partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1 as on 31st March 2010. इनमें से B की डेथ हो जाती है on 30 जून 2010. यानी कि उसने फर्म के साथ वर्क किया फॉर 3 months, अप्रैल, मई एंड जून, and his legal representatives are entitled to balance in the capital and balance of the goodwill. The goodwill is calculated on the basis of thrice the average of past 4 years' profit. His share in profits was also decided to be paid on the basis of average profit for the last 4 years. Interest on the capital, as it was written in partnership deed, was at rate of 12% per annum. Profit has been given to you for the last 4 years, 1500, 1700, 1900 and 1300. Firm has also taken a joint life policy of rupees 12,500. The annual premium of the same has been charged to profit and loss account every year. B's representatives were paid the amount due and A and C decided to continue the business as equal partners. You are required to calculate the amount due to B's legal representative. The balance sheet is given in front of your screen. On the liability side, we have creditors 4,000, reserve fund 2,500, capitals A, B and C. A 3,000, B 2,500, C 1,500. Total liabilities are 13,500. On the asset side, there is goodwill 3,000, fixed assets 6,000, stock 1,000, sundry debtors 2,000, cash at bank 1,500. The total of the assets are 13,500. Now let us first of all calculate the share of goodwill, which will go to B. So goodwill was decided to be valued at thrice of the average profit of the 4 years. इसका मतलब सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे. सो प्रॉफिट विच आर गिवन टू अस फॉर द लास्ट 4 years आर 1,500, 1,700, 1,900, 1,300. So average profit will be calculated as 1,500 plus 1,700 plus 1,900 plus 1,300 divided by 4. It is equivalent to 6,400 divided by 4 means 1,600. And goodwill will be 1,600 average of 4 year profit multiplied by thrice means 3
This will be equivalent to 4,800. Out of 4,800, B's share in goodwill will be 4,800 multiplied by 2 divided by 5 equivalent to 1,920. Now this 1,920 will be shared by A and C in their new profit sharing ratio, and new profit sharing ratio is equal means 1 by 2 to A and 1 by 2 to C. So जो 1920 रुपए की बी की गुडविल है वो ए उसमें से क्या शेयर लेगा, 1920 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 मीन्स 960 रुपीस. सिमिलरली सी उसमें से 1920 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 मीन्स 960 का प्रपोर्शन शेयर करेगा. नाउ देयर इज वन मोर आइटम विद रिस्पेक्ट टू गुडविल इन द क्वेश्चन, दैट इज द एग्जिस्टिंग गुडविल. जो बैलेंस शीट में गुडविल लिखी हुई है जिसका अमाउंट है 3,000 रुपए. और जब हमने गुडविल की ट्रीटमेंट पढ़ी थी तब हमने ये पढ़ा था कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें देनी है. इसका मतलब बी का शेयर इसमें से क्या होगा, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मीन्स 1,200. इसी तरीके से अब हम बी का शेयर कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट में से. देखिए बी का पहले तो हम ये निकालें कि फर्म के एवरेज प्रॉफिट क्या है, जो अभी हमने गुडविल के केस में भी कैलकुलेट किया 1,600. इसमें से बी का शेयर क्या बनता है, एनुअल बेसिस पे बनता है 1,600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 640 रुपए. लेकिन जब बी की डेथ हुई तब अभी 3 महीने ही हुए थे नए साल को. इसका मतलब 640 का 3 महीने के हिसाब से जो बी का प्रॉफिट का शेयर बनता है वो हमने बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को देना है. तो 640 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 मीन्स 160 रुपीस विल बी गिवन टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बी. नेक्स्ट इसमें जो हमें एडजस्टमेंट दी हुई है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब देखिए बी की कैपिटल थी 2,500, इंटरेस्ट हमने देना है 12% का, लेकिन कितना टाइम का, 3 मंथ्स, क्योंकि हमने बी की कैपिटल 3 मंथ्स के लिए यूज की. तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 मीन्स 75 रुपीस. एंड देन देयर वाज जॉइंट लाइफ पॉलिसी. कंपनी ने 12,500 रुपए की जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी ली हुई है. अब जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपने आप मैच्योर हो जाती है. इसका मतलब 12,500 को भी हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. तो बी का शेयर कितना आया, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 5,000. नाउ लेट अस कैलकुलेट बीज कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले क्रेडिट साइड पे हमने, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट था, तो हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,500. एंड देन एज पर द बैलेंस शीट गिवन टू अस देयर वाज रिजर्व फंड ऑफ 2,500. इस रिजर्व फंड में से जो बी का हिस्सा बनता है 2/5 उसको हम दे देंगे. सो 2,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5 गिव्स अस 1,000 रुपीज. तो हमने 1,000 बी के सामने लिख दिया, उसके रिजर्व फंड के सामने लिख दिया. देन देयर वॉज गुडविल विच वॉज टू बी गिवन टू बी. अब बी की गुडविल में ए ने शेयर किया 960, सी ने शेयर किया 960, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट 960 बाय सीज कैपिटल अकाउंट 960. एंड देन देयर वाज शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 160, तो हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 160. देन जॉइंट लाइफ पॉलिसी शेयर बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 5,000 रुपीज. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 75. और डेबिट साइड पे हमने लिखा जो एग्जिस्टिंग गुडविल बी ने शेयर करनी थी, तो टू गुडविल अकाउंट 1,200. नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द अकाउंट टू फाइंड आउट व्हाट द कंपनी विल बी पेइंग टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बी. सो बैलेंस करके क्रेडिट साइड का टोटल आया 10,655, जिसमें से हमने डेबिट साइड वाला 1,200 रिड्यूस कर दिया, तो हमारे पास टोटल आया 9,455. This 9,455 will be paid by the firm to the legal representatives of the B. So we are writing to B's legal representatives 9,455. तो इस सारे सेशन में हमने सीखा कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमें किन किन एडजस्टमेंट्स के हिसाब से उनको उनकी पेमेंट हमने वापस करनी होती है. सो वी कैलकुलेटेड गेनिंग रेशियो, वी कैलकुलेटेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, देन एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस,
disposal of amount due to retiring partners, and the loan account of the retiring partner.